السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ کمل اور سپورٹس نیوز میں ہمارا ساتھ دیں گے میں ہوں محمد انیس۔ کھیلوں میں جہاں اہم خبریں شامل کریں گے، وہیں آپ کو بتائیں گے کہ اسلام آباد یونائیٹڈ کے کپتان شاداب خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہوم گراؤنڈ پر اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کریں گے۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی، اور آپ کو بتائیں گے کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم کیسا رہے گا۔ ابھی رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، بجلی چوری اور لائن لاسز پر تفصیلی بریفنگ۔ 23 جنوری کے بجلی بریک ڈاؤن کی انکوائری رپورٹ پیش۔ انسانی غفلت اور بجلی کی ترسیل کے نظام میں موجود خرابیاں بنیادی وجوہات قرار۔ قوم منتظر ہے کہ سنگین لاپرواہی پر قرار واقعی سزا دی جائے۔ وزیر اعظم لائن لاسز کے خاتمے اور ٹیوب ویلز کی شمسی توانائی پر منتقلی کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ۔ دیوالیہ ہونے سے متعلق خبریں من گھڑت اور بے بنیاد، ملک دشمن عناصر ایسی باتیں پھیلا رہے ہیں۔ اقتصادی اشاریے درست سمت میں بڑھ رہے ہیں۔ IMF کے ساتھ آئندہ ہفتے سٹاف لیول معاہدہ ہو جائے گا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار۔ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ پالیسی ریٹ میں 3% اضافہ بڑھ کر 20% ہو گیا۔ جنوری میں جاری کھاتوں کا خسارہ کم ہو کر $242 ملین رہ گیا۔ دیگر شعبوں کی درآمدی ضروریات پوری کرنے کے لیے توانائی بچت ضروری قرار۔ عمران خان کی نااہلی اور غلط ترجیحات سے ملک کو بہت نقصان پہنچا۔ پہلے IMF سے ظالمانہ معاہدہ کیا اور پھر انحراف سے ملک کو معاشی تباہی کی طرف دھکیل دیا۔ PTI دور کی غلطیوں کو درست کرنے والوں پر تنقید کے بجائے عمران خان آرام سے بیٹھے۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز۔ عمران خان نے 4 سال اپنے ہاتھ سے ملک کی معیشت کو آگ لگائی، آئینی اور سیاسی عدم استحکام پیدا کیا۔ یہ شخص اب ڈھٹائی سے معاشی صورتحال پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ 2016 میں عمرانی منصوبے کا آغاز ملک کے خلاف سازش کی ابتدا تھی۔ 6.2% کی شرح سے ترقی کرتی معیشت اور 3% مہنگائی کے وقت ملک کے خلاف سازش نہ ہوتی تو آج صورتحال یہ نہ ہوتی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا وفاقی دارالحکومت میں 120 دن میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم۔ 31 دسمبر کو بلدیاتی انتخاب کرانے کے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف وفاق اور الیکشن کمیشن کی اپیلوں پر سماعت۔ الیکشن کمیشن کی اسلام آباد کی 125 یونین کونسلز نے 120 دنوں میں بلدیاتی انتخابات کرانے کی یقین دہانی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی زیر صدارت کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس، نیشنل ایکشن پلان پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ۔ دہشت گردوں کا قلع کما کرتے ہوئے ان کے سہولت کاروں کا بھی صفایا کریں گے۔ انسداد دہشت گردی اداروں کی استعداد کار بڑھانے کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جائیں۔ وزیر داخلہ۔ افغان صوبے حسن کل عدم TTP پر حملہ، اہم کمانڈروں سمیت 6 دہشت گرد ہلاک، 15 شدید زخمی۔ حملے کے بعد TTP کی قیادت میں شدید مایوسی اور اختلافات کی لہر۔ ایک اور واقعے میں عمر میڈیا گروپ کا انچارج مکرم خراسانی شدید زخمی۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض فوج کی ریاستی دہشت گردی، بھارتی فوج کے ہاتھوں اغوا ہونے والے نوجوان عبدالرشید ڈار کی لاش کپواڑہ سے برآمد۔ شہادت کے خلاف اہل علاقہ سراپا احتجاج، آزادی کے حق میں اور بھارت مخالف نعرے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے حراستی قتل کی شدید مذمت۔ نہتے فلسطینیوں پر صہیونی فوج کے مسالم، مغربی کنارے میں مزید 2 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج کا اریحہ کے علاقے کا مسلسل تیسرے روز بھی سخت محاصرہ۔ روس اور یوکرین کے درمیان مختلف علاقوں میں شدید لڑائی، روسی فوج کی باخمود کی جانب پیش قدمی۔ مشرقی شہر زاپوریژیا میں میزائل حملے میں 4 افراد ہلاک، 8 زخمی۔ خطے میں چودراہٹ کا خواب دیکھنے والے بھارت کو صبح کی نئی دلی میں G20 وزرائے خارجہ اجلاس ناکامی سے دوچار۔ یوکرین جنگ پر اختلافات، مشترکہ اعلامیہ جاری نہیں ہوگا۔
भारतीय वजीर खारिजा एस जयशंकर ने नाकामी तस्लीम कर ली। आपकी मालूमात आपका इख्तियार, नादरा की नई मुनफरिद सर्विस, इजाजत आपकी मुतारिफ। ज़ाती मालूमात की फराहमी का मुकम्मल इख्तियार अब शहरियों के पास होगा। शनाख्ती कार्ड की तस्दीक मुतल्लिका शहरी की रजामंदी के बाद की जाएगी। पाकिस्तान मुतनफ़्फ़िज़ सकाफ़तों का अमीन, बलोच कल्चर डे तक़रीबात का इनेकाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सकाफ़ती दिन पर मुबारकबाद। पाकिस्तान की खूबसूरती, बलोची तहज़ीब व तमद्दुन के रंगों और तारीख बहादुर बलोचों की कुर्बानी के बगैर नामुकम्मल है। वज़ीर आज़म। गिलगित में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, कोहिस्तान में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। बालाई इलाकों में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। शिमाली बलूचिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। Have to go over the wicket. और फिर कैच। उमर आसिफ लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग 8, लाहौर कलंदर्स का कोयटा ग्लैडिएटर्स को 149 रन का हदफ। सिकंदर रसा के जारहाना 71 रन। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। edged and gone. Another one, Naseem. और पीसीबी का वुमेन्स लीग के नुमाइशी मैचेस के शेड्यूल का ऐलान। एमेजॉन्स और सुपर वुमेन की टीम्स के दरमियान मुकाबले 8, 10 और 11 मार्च को पिंडे क्रिकेट स्टेडियम में होंगे। हेडलाइंस आपने जानी, तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। हमारे सकाफती अख्तार, हमारी आन, हमारी शान, इन्हीं की बदौलत मुनफरिद है बलोचिस्तान की पहचान। तहजीब व सकाफत के इन खुशनुमा रंगों को उजागर करने के लिए वजीर आला बलोचिस्तान की जेर क़यादत सूबा भर में 2 मार्च 2023 को बलोच कल्चर डे का इनेकाद। हर जिला में होंगी रंगारंग तकरीबात, जिसमें सूबा भर से नामवर गुलकार और फनकार अपने फन का करेंगे इजहार। इलाकाई मसनूआत की नुमाइश और सकाफती रक्स के अलावा दीगर दीदाजेब और दिलकश सकाफती प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जाएंगे। तहजीब व सकाफत के फरोग के लिए कोशा महकमा इत्तलात, हुकूमत बलोचिस्तान। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं, वफाकी काबीना के इजलास में 23 जनवरी को मुल्क में पावर ब्रेकडाउन की वजूहात और जिम्मेदारों से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि कौम मुंतज़िर है इस संगीन लापरवाही पर करार वाकई सजा दी जाए। इजलास में लाइन लॉसेस के खात्मे और ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकिली के लिए कमेटी तश्कील देने का भी फैसला किया गया। मज़ीद तफसील बताएंगे मोहम्मद मजहर अब्बास। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में 23 जनवरी 2023 को मुल्क गिर पावर ब्रेकडाउन की तफसीली रिपोर्ट पेश की गई। ये रिपोर्ट वज़ीर आज़म की हिदायत पर कायम की गई 4 रुकनी इनक्वायरी कमेटी ने पेश की। रिपोर्ट में न सिर्फ उस वाक़े की बुनियादी वजूहात बयान की गई हैं, बल्कि इस हवाले से जिम्मेदारान की निशानदही भी की गई है। तहकीकाती कमेटी ने वफाकी काबीना को बताया कि 23 जनवरी 2023 को सुबह 7:30 बजे से बिजली का निज़ाम ट्रिप होने की वजह रात को बंद किए गए AC सर्किट्स को सुबह स्विच ऑन न करना थी। जो ही मुल्क के शुमाल में बिजली की तलब को पूरा करने के लिए जनूबी इलाके में विंड एनर्जी से पैदा की जाने वाली बिजली सिस्टम में शामिल की गई तो AC लाइन की फ्रीक्वेंसी गैर मामूली तौर पर बढ़ गई। फ्रीक्वेंसी में यकदम इजाफे से मुख्तलिफ पावर प्लांट्स खुदकार सिक्योरिटी सिस्टम के तहत ट्रिप कर गए। विफाकी काबीना ने तवानाई की बचत के हवाले से लाइन लॉसेस के खात्मे और ट्यूबवेल की शमसी तवानाई पर मुंतकली के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला भी किया। इजलास में बिजली चोरी और लाइन लॉसेस के हवाले से मुतल्लिका हुकाम ने ब्रीफिंग दी और 23 जनवरी को होने वाले ब्रेकडाउन की वजूहात और जिम्मेदारों से मुतालिक रिपोर्ट भी पेश की गई। इजलास में फैसला किया गया कि पावर डिवीजन की जानिब से तजवीज दी गई है कि ऐसे इलाके जहां पर लाइन लॉसेस 60% और उससे ज्यादा हैं, वहां पर सूरत हाल को काबू में लाने के लिए खुसूसी पुलिस तश्कील दी जाए।
اجلاس کو مزید بتایا گیا کہ ملک بھر میں بجلی سے چلنے والے ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن کا منصوبہ زیر غور ہے، جس کا آغاز سب سے پہلے بلوچستان سے کیا جائے گا۔ اجلاس کے دوران وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ اتنے بڑے بریک ڈاؤن کی ذمہ داران کو لاپرواہی برتنے پر سزا دی جائے گی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ پاور ڈویژن اس مجرمانہ غفلت کے مرتکب اہلکاروں کے خلاف فوراً محکمانہ کارروائی کرے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کیپکو کے پاور پرچیز کے معاہدے کی میعاد اگر ختم ہو چکی تھی تو اس معاہدے کی تجدید کے لیے ضروری کارروائی میں تاخیر کیوں کی گئی۔ انہوں نے تاکید کی کہ پاور ڈویژن اور دیگر متعلقہ ادارے بجلی کی پیداوار اور ترسیل کے نظام میں اصلاحات کے حوالے سے ایک جامع لائحہ عمل مرتب کر کے کابینہ میں منظوری کے لیے پیش کرے۔ وزیر اعظم نے بجلی چوری لائسنس کو ختم کرنے کے حوالے سے حکمت عملی اور بجلی سے چلنے والے ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن کے حوالے سے ایک خصوصی کابینہ کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے اسلام آباد میں ارکان قومی اسمبلی وحید عالم اور سید آغا رفیع اللہ نے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ ارکان قومی اسمبلی نے حلقوں کے امور اور ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے پاکستان مسلم لیگ نون سندھ کے صدر شاہ محمد شاہ نے بھی ملاقات کی اور ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت کی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے دیوالیہ ہونے سے متعلق افواہوں کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک دشمن عناصر ایسی باتیں پھیلا رہے ہیں۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر خزانہ نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے ہیں اور 4 ہفتے پہلے کے مقابلے میں $1 ارب زیادہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ IMF کے ساتھ ہمارے مذاکرات مکمل ہونے والے ہیں۔ امید ہے آئندہ ہفتے تک سٹاف لیول معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ تمام اقتصادی اشاریے آہستہ آہستہ درست سمت میں بڑھ رہے ہیں۔ غیر ملکی کمرشل بینکس نے سہولیات فراہم کرنا شروع کر دی ہیں۔ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر ایک ہفتے کے دوران $70 کروڑ کے اضافے کے ساتھ $9 ارب 26 کروڑ کی سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق 24 فروری 2023 کو اسٹیٹ بینک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر کا حجم $3.81 ارب اور کمرشل بینکوں کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر کا حجم $5.45 ارب ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ ہفتے کے دوران زر مبادلہ کے ذخائر میں $70 کروڑ کا اضافہ ہوا۔ 24 فروری 2023 کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران اسٹیٹ بینک کو چین سے $700 ملین موصول ہوئے۔ اسٹیٹ بینک کے ذخائر $556 ملین سے بڑھ کر $3 ارب 81 کروڑ ہو گئے ہیں۔ اور اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے پالیسی ریٹ 3% بڑھا کر 20% کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مرکزی بینک کی زرعی پالیسی کمیٹی کے اجلاس میں پالیسی ریٹ بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک کے اعلامیے کے مطابق جنوری میں جاری کھاتوں کا خسارہ کم ہو کر $242 ملین رہ گیا، جو مارچ 2021 سے اب تک کم ترین سطح ہے۔ مالیاتی مانیٹری کمیٹی نے بیرونی کھاتوں پر دباؤ کم کرنے اور دیگر شعبوں کی درآمدی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے توانائی کی بچت پر زور دیا ہے۔ کمیٹی کا آئندہ اجلاس 4 اپریل کو ہوگا۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا ہے کہ عمران خان کی نااہلی اور غلط ترجیحات سے ملک کو بہت نقصان پہنچا۔ عمران خان نے پہلے IMF سے ظالمانہ معاہدہ کیا اور بعد میں اس سے انحراف کرتے ہوئے ملک کو معاشی تباہی کی طرف دھکیل دیا۔ مریم نواز نے کہا کہ PTI دور کی غلطیوں کو درست کرنے والوں پر تنقید کے بجائے عمران خان آرام سے بیٹھیں۔ انہوں نے کہا کہ اس معاشی انتشار کے لیے عمران خان کو ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے اسے 4 سال مسلط کیے رکھا اور نظام میں موجود باقیات اس شخص کے لیے امید کی آخری کرن ہے، لیکن ہم یہ سب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران خان نے 4 سال اپنے ہاتھ سے ملکی معیشت کو آگ لگائی اور آئینی اور سیاسی عدم استحکام پیدا کیا۔ وہی شخص اب ڈٹائی سے معاشی صورتحال پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ 2016 میں عمرانی منصوبے کا آغاز ملک کے خلاف سازش کی ابتدا تھی۔ 6.2% کی شرح سے ترقی کرتی معیشت اور 3% مہنگائی کے وقت ملک کے خلاف سازش نہ ہوتی تو آج صورتحال یہ نہ ہوتی۔ ناظرین، اعداد و شمار پر نظر دوڑائی جائے تو مسلم لیگ کے گزشتہ دور حکومت میں معیشت کے ہر شعبے میں ترقی ہو رہی تھی۔ PTI کے 4 سالہ دور اقتدار میں ناقص حکمت عملی سے ترقی کا سفر رک گیا۔ تفصیل جانیں گے رانا افتخار احمد کی اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون کے گزشتہ دور حکومت 2013 سے 2018 تک ملکی GDP میں $112 ارب کا اضافہ ہوا، جبکہ PTI کے 4 سالوں میں GDP میں $61 ارب کا اضافہ ہوا۔ مسلم لیگ نون کے 5 سالوں میں فی کس آمدنی $379 کے اضافے سے $1768 پر پہنچی، جبکہ PTI کے 4 سالوں میں فی کس آمدنی میں صرف $220 کا اضافہ ہوا۔ مسلم لیگ نون کے دور میں مالیاتی خسارہ 5.5% سے
5.8% रहा, जबकि PTI के दौर में ये 7.9% पर पहुंच गया। मौजूदा हुकूमत इसे कम करके 2% पर ले आई है। मुस्लिम लीग नून के दौर में टैक्स वसूली 2,254 अरब रुपए से बढ़कर 3,844 अरब रुपए पर पहुंची, जबकि PTI के दौर में टैक्स वसूली 6,148 अरब रुपए तक गई। मुस्लिम लीग नून ने 2018 में महंगाई की शरह को 4.68% पर छोड़ा, जो PTI हुकूमत के आखिरी साल 12.2% पर पहुंच गई। मुस्लिम लीग नून के दौर में तरक्याती कामों के लिए फंड्स का इजरा 733 अरब रुपए तक पहुंच गया था, जो PTI दौर में कम होकर 558 अरब रुपए पर आ गया। मुस्लिम लीग नून के दौर में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 1 अरब 70 करोड़ डॉलर से बढ़कर $3.25 अरब से तजावज कर गई थी, जबकि PTI दौर में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 1 अरब 36 करोड़ डॉलर से 1 अरब 86 करोड़ डॉलर तक पहुंची। मुस्लिम लीग नून के दौर में डॉलर 98.50 से बढ़कर 121.50 का हुआ, जबकि PTI के दौर में डॉलर 160 रुपए से बढ़कर 204.80 तक पहुंच गया। मुस्लिम लीग नून के गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में पॉलिसी रेट 10% से कम करके 6.5% पर लाया गया, जबकि PTI के दौर में ये 13.75% पर पहुंच गया था। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत सेंट्रल एपिक्स कमेटी के तहत कायम कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें नेशनल एक्शन प्लान पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। सूबों की जानिब से एपिक्स कमेटी के इजलास में होने वाले फैसलों पर अमल दरामद के लिए इकदाम पर ब्रीफ किया गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तमाम इदारों को टाइम फ्रेम के मुताबिक अहदाफ वाज़ेह करने की हिदायत करते हुए कहा कि अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है और दहशत गर्दी के खिलाफ जामे और मौसर कौमी हिकमत अमली दरकार है। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों का कला कमा करते हुए इनके सहूलतकारों का भी सफाया करेंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इंसदाद दहशत गर्दी के इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने और मुकम्मल फ़ाल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएँ। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तानी कौम और इदारों ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। इसी अज़्म और जज्बे से इस नासूर का मुकम्मल खात्मा मुमकिन है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक़ डार से जमहूरिया पोलैंड के सफ़ीर एम पिसार्स्की ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पाकिस्तान पोलैंड के साथ अपने दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को इंतहाई अहमियत देता है। उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती इक़्तिसादी ताल्लुक़ात में इजाफ़े की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में पोलैंड की सरमायाकारी को सराहा। पोलैंड के सफ़ीर ने कहा कि दोनों ममालिक में बेहतरीन ताल्लुक़ात हैं, जिन्हें मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार से अलजुमा होल्डिंग कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल अजीज़ हमाद अलजुमा ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान में अलजुमा होल्डिंग कंपनी की सरमायाकारी का खैर मकदम किया और कहा कि मौजूदा हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को साजगार माहौल और सहूलतें फराहम कर रही है। अब्दुल अजीज़ हमाद अलजुमा ने वज़ीर ख़ज़ाना को अपनी कंपनी की पाकिस्तान में सरमायाकारी के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार ने अलजुमा होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि वकला के साथ मिलकर आईने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और बका की जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। बिलावल हाउस लाहौर में पीपल्स लॉयर्स फोरम और प्रोग्रेसिव लॉयर्स अलायंस के नुमाइंदगान से मुलाकात में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सबाहत रिजवी को लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। पीपल्स लॉयर्स फोरम और प्रोग्रेसिव अलायंस के नुमाइंदों ने इंसानी हुकूक और आइन की बालादस्ती की जद्दोजहद में बिलावल भुट्टो ज़रदारी का साथ देने के अज़्म का इआदा किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में 120 दिन में बल्दियाती इंतखाबात का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रफत इम्तियाज पर मुश्तमिल बेंच ने मामले की समाअत की। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस्लामाबाद की 125 यूनियन काउंसिल्स पर 120 दिन में बल्दियाती इलेक्शन की जगह दहानी के बाद अदालत ने तमाम दरख्वास्तें निपटा दी। नादरा ने शहरियों की ज़ाती मालूमात के यकीनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए नई सर्विस इजाज़त आपकी मुतारिफ करा दी है। सर्विस की बदौलत ज़ाती मालूमात देने या ना देने का मुकम्मल इख्तियार अब शहरियों के पास होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर हुसैन।
शहरियों की ज़ाती मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मुतारिफ कराई जाने वाली इस जदीद तरीन सर्विस की बदौलत शनाख्ती कार्ड की तस्दीक मुतल्लिका शहरी की रजामंदी के बाद ही की जा सकेगी। शहरी का हसास डेटा भी हमा वक्त मुकम्मल तौर पर महफूज रहेगा। डेटा को कंट्रोल करने का ये महफूज तरीन निज़ाम शहरियों की ज़ाती मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नादरा के पुख्ता अज़्म का मुंह बोलता सबूत है। नई सर्विस के इजरा पर चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने कहा कि शहरियों से रजामंदी के हसूल का डिजिटल निज़ाम इनकी प्राइवेसी को महफूज रखने और डेटा सिक्योरिटी को मुस्तहकम बनाने के लिए हमारे विजन का आयनादार है। चेयरमैन नादरा ने कहा कि हम शहरियों के डेटा की मलकियत उनके अपने हाथ में दे रहे हैं। इस नए निज़ाम की बदौलत मसनूआत या खिदमात फराहम करने वाले इदारों को किसी भी शहरी की ज़ाती मालूमात इस्तेमाल करने से पहले शहरी के मोबाइल नंबर पर भेजे गए जरूरी पास कोड लेकर इसकी रजामंदी हासिल करना होगी। 2 मार्च से शनाख्ती मालूमात की तस्दीक की तमाम कार्रवाइयों में एक 6 हिंदसी पास कोड मुतल्लिका शहरी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भिजवाया जाएगा और मालूमात की फराहमी के लिए उसकी रजामंदी हासिल की जाएगी। जिन शहरियों के मोबाइल नंबर नादरा के पास रजिस्टर्ड नहीं, उनके इंदराज के लिए नादरा ने एक SMS सर्विस 8009 शुरू की है, जिस पर शहरी अपने मोबाइल नंबर की रजिस्ट्रेशन के लिए अपना 13 हिंदसों का शिनाख्ती कार्ड नंबर भिजवा सकते हैं। जवाब में इंदराज मुकम्मल होने पर उन्हें नादरा की जानिब से तस्दीकी पैगाम मौसूल होगा। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने शहरियों से अपील की है कि वो अपनी जाती मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चौकस रहें और अपनी शिनाख्त की चोरी और धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करें। नादरा के पास अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराने और अपनी जाती मालूमात दूसरों को देने में एहतियात से काम लेने का असल फायदा खुद शहरियों को ही होगा, क्योंकि इस तरह उनकी जाती मालूमात मुकम्मल तौर पर महफूज रहेंगी और कोई भी शख्स या इदारा उनकी इजाजत के बगैर उन हसास मालूमात तक रसाई हासिल नहीं कर सकेगा। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि खिदमात की बेहतर फराहमी और ब्यूरोक्रेसी में जल्द फैसला साजी की रूह पैदा करने की ज़रूरत है। ईवान सदर इस्लामाबाद में नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास से खिताब में सदर ममलिकत का कहना था कि ब्यूरोक्रेसी की जानिब से सुस्त फैसला साजी खराब गवर्नेंस का बायस बनती है। सदर ममलिकत ने कहा कि सिविल सर्वेंट्स में बेहतर फैसला साजी पैदा करने के लिए आलमी तरबियती तरीक़ाकार अपनाने की ज़रूरत है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में नौजवान प्रोफेशनल्स को बतौर इंटर्नीज भर्ती करने की मंजूरी दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि तमाम नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट में बोर्ड के कंप्यूटर ऑपरेटर्स की ग्रेड 11 से ग्रेड 16 में अपग्रेडेशन की जाएगी। इस्लामाबाद में बहबूद मैटरनल एंड चिल्ड्रन अस्पताल रावलपिंडी के इफ्तिताह के मौके पर तकरीब से खिताब में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि आइंदा नस्लों की बेहतरीन तरबियत में ख़वातीन का अहम किरदार, जबकि मिसाली मुआशरे के क़याम के लिए औरतों का बाइख्तियार होना नहायत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी इस्लामी मुआशरे का बुनियादी जुज़्व है। इस्लाम ने औरत को जो मकाम दिया है, मुआशरे में इस पर अमल दरामद के लिए सबको किरदार अदा करना है। इस्लामी मुआशरे में बहुत बड़ा मुकाम है, मगर कल्चरल जो माशरा बनाया है हमने, उसके अंदर वो मुकाम हमने कल्चर्स के एतबार से उसके रास्ते रोके हैं। तो माशरे को भी तो एहतमाम करना चाहिए कि अगर ये माशरे की बेहतरीन ज़िम्मेदारी, इससे बड़ी ज़िम्मेदारी कोई नहीं हो सकती कि अगली नस्ल की तरबियत कौन करेगा। ये ज़िम्मेदारी आप किसी और को दे नहीं सकते। तो जहाँ औरत को एम्पावर करने के एतबार से मैंने आपसे कहा कि लिप सर्विस नहीं हो सकती, we have to get out of that forum. कि बीबी खतीजा, the wife of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, was a businesswoman, so she was out and working. कोई बहस नहीं कर सकता। अलबत्ता ये माशरे की जिम्मेदारी है कि औरत जब बाहर काम करने निकले तो वो हिरासा ना हो, बच्ची जब तालीम हासिल करने के लिए जाए तो उसको वो हिरासा ना हो। जब ये चीज़ आप इंश्योर कर दें तो उनकी ज़बान भी बंद हो जाएगी जो रोकते हैं। इत्तलात और नशरियात के बारे में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी का इजलास चेयरपर्सन जवेरिया आहिर की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें मुख्तलिफ उमूर ज़ेर ख़ौर आए। मजलिस से कायमा ने वजारत इत्तलात को हिदायत की कि पैमरा, PID, रेडियो पाकिस्तान और APP से मुतल्लिक मुजवज़ा कानून साजी के मुसव्वदे पेश किए जाएँ। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद और वजारत दाखिला की रिपोर्ट के हवाले से इजहार ख्याल किया। वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात शाहिरा शाहिद ने बताया कि निजी TV चैनल्स के मवाद की मॉनिटरिंग के लिए पैमरा में जदीद निज़ाम नस्ब किया गया है। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी और गैर अखलाकी मवाद नशर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। चेयरपर्सन कमेटी जवेरिया आहिर ने कहा कि TV चैनल्स पर गैर अखलाकी मवाद की तशहीर रोकने के लिए ज़रूरी कानून साजी होनी चाहिए। प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर मुबशर हसन और डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान ताहिर हसन ने अपने इदारों की कारकर्दगी से मुतालिक ब्रीफिंग दी।
قائمہ کمیٹی نے ہدایت کی کہ پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اور ریڈیو پاکستان کے مختلف شعبوں کی 5 سال کی کارکردگی کے بارے میں بریفنگ دی جائے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری ویمن ان اسلام کانفرنس میں شرکت کے لیے نیو یارک کا دورہ کریں گے۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ کے دوران دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ کانفرنس 8 مارچ کو نیو یارک میں ہو رہی ہے، جس میں مسلم خواتین کی کامیابیوں اور معاشرے میں ان کے کردار پر بات ہوگی۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ اٹلی اور لیبیا میں کشتی حادثات میں 9 پاکستانی شہری جاں بحق ہوئے ہیں، جن کی میتوں کی وطن واپسی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ممتاز زہرا بلوچ نے بتایا کہ جرمنی کے وزیر خارجہ 4 سے 7 مارچ تک پاکستان کا دورہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی کھر نے جنیوا میں منعقدہ تخفیف اسلحہ کانفرنس کے اعلیٰ سطح اجلاس میں شرکت کی۔ اپنے ویڈیو پیغام میں وزیر مملکت ہنا ربانی کھر نے عالمی اور علاقائی سلامتی کے لیے موجودہ اور ابھرتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کی اہمیت کے بارے میں بات کی۔ خبر شامل کریں گے افغان صوبے خوست سے، جہاں کل عدم ٹی ٹی پی پر حملے میں اہم کمانڈروں سمیت 6 دہشت گرد ہلاک جبکہ 15 شدید زخمی ہو گئے۔ دھماکے کے بعد ٹی ٹی پی میں شدید مایوسی اور اختلافات کی لہر دوڑ گئی ہے۔ شکوک و شبہات مزید بڑھ گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ایک علیحدہ واقعے میں ٹی ٹی پی کے عمر میڈیا گروپ کا انچارج مکرم خراسانی بھی شدید زخمی ہوا ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں ایک کشمیری نوجوان کی شہادت پر احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ کے ایم ایس کے مطابق شہید عبدالرشید ڈار کو بھارتی فوج نے اغوا کر لیا تھا، جس کی لاش ضلع کپواڑہ کے زرہامہ جنگل سے برآمد کی گئی۔ شہید کشمیری نوجوان کے اہل خانہ نے اپنے بیٹے کی بھارتی فوج کے ہاتھوں قتل کی تصدیق کی ہے۔ نوجوان کی شہادت کے بعد مودی حکومت اور اس کے ظالم فوج کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ مظاہرین نے بھارت مخالف نعرے لگائے اور قتل میں ملوث بھارتی فوجی اہلکاروں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عبدالرشید ڈار کے حراستی قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ حریت رہنما غلام احمد گلزار، خادم حسین اور سبت شبیر قمی نے سری نگر میں جاری اپنے بیانات میں کہا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں بے گناہ نوجوانوں کا قتل معمول بن چکا ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ عبدالرشید کی مسخ شدہ لاش دیکھ کر انتہائی رنجیدہ ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ احتساب کی عدم موجودگی کی وجہ سے 2019 کے بعد ایسے واقعات معمول بن چکے ہیں۔ بدنام زمانہ بھارتی تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے آج سری نگر کے علاقے نوہٹا میں ممتاز آزادی پسند رہنما مشتاق احمد زرگر کے آبائی گھر کو ضبط کر لیا۔ مشتاق زرگر جموں و کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت کے لیے گزشتہ کئی برس سے بھرپور آواز اٹھا رہے ہیں۔ مقبوضہ علاقے کی سیاسی جماعتوں نیشنل کانفرنس، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے بھارتی انتظامیہ کی جانب سے علاقے میں پراپرٹی ٹیکس کے نفاذ کے خلاف جموں میں مظاہرے کیے۔ مظاہرین نے پراپرٹی ٹیکس کے حکم نامے کو فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے ایک بیان میں پارٹی چیئرمین شبیر احمد شاہ اور دیگر حریت رہنماؤں کی مسلسل غیر قانونی نظر بندی پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اور ناظرین، کرتارپور راہداری نے برسوں سے بچھڑے ایک اور خاندان کو ملوا دیا۔ سگے بھائیوں غلام محمد اور دیا سنگھ کے خاندان 75 سال بعد ملے تو ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ اس موقع پر جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے۔ تقسیم کے وقت ہریانہ کے 2 خاندانوں کو جدا ہونا پڑا۔ غلام محمد اور دیا سنگھ ملاقات کے انتظار میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان دونوں کے بیٹے محمد شریف اور اوتار سنگھ بھی ملنے کو ترستے رہے۔ چند ماہ پہلے 85 سالہ محمد شریف کا 77 سالہ چچا زاد بھائی اوتار سنگھ سے رابطہ ہوا۔ محمد شریف اپنے خاندان کے ہمراہ جنگ سے، جبکہ اوتار سنگھ اور اس کا خاندان کرتارپور راہداری کے ذریعے دربار بابا گرو نانک پہنچا، جہاں دونوں خاندانوں کی ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے۔ عمان کی شاہی بحریہ کے کمانڈر ریئر ایڈمرل سیف بن نصیر بن محسن الراہبی نے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ بحری تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سربراہ پاک بحریہ نے حال ہی میں ہونے والی امن مشق میں شرکت پر عمان کے ہم منصب کا شکریہ ادا کیا۔ ان کے دورے سے دونوں ممالک کے مابین دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ ملے گا۔ قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی برائے متاثرہ ملازمین نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے 22 ملازمین کو ملازمت پر بحال کرنے کا حکم دیا ہے۔ کمیٹی کا اجلاس چیئرمین قادر خان مندوخیل کی صدارت میں ہوا، جس میں وزارت تخفیف غربت، وزارت پارلیمانی امور، وزارت منصوبہ بندی اور ترقی، پیٹرولیم ڈویژن اور بجلی کی ترسیلی کمپنیز کے ملازمین کو درپیش مسائل کا جائزہ لیا گیا۔ چیئرمین کمیٹی قادر خان مندوخیل نے کہا کہ ہم روزگار چھیننے نہیں دیتے۔ خصوصی کمیٹی نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ملازمین کے معاملے پر 3 دن میں رپورٹ طلب کرتے ہوئے FIA کو خلاف ضابطہ کارروائی کرنے والے افسروں کے خلاف انکوائری کا حکم دیا۔
कमेटी ने OGDCL हुकाम के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और मुतासरा मुलाजिम को मुलाजमत पर बहाल करने का हुक्म दिया। सेनेट की कायमा कमेटी तालीम और पेशा वाराना तरबियत ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कल्चर एंड हेल्थ साइंसेज बिल मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर लिया है। कायमा कमेटी का इजलास सेनेटर इरफानुल हक सिद्दीकी की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास में वफाकी तालीमी इदारों में यौमिया उजरत पर असातिज़ा भर्ती करने के मुजरिमाना अमल को रोकने पर जोर दिया गया। चेयरमैन कमेटी ने FPSC को हिदायत की कि मज़कूरा असातिज़ा को जल्द अज जल्द रेगुलर किया जाए और 15 दिन में अमल दरामद रिपोर्ट पेश की जाए। चेयरमैन कमेटी का कहना था कि वजारत को नए मंसूबों पर जाने के बजाय जारी मंसूबों को मुकम्मल करने पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि वक्त और पैसा ज़ाया न हो। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। शुक्रिया अनीस। खबरनामे में शामिल करेंगे कुछ कौमी खबरें। गवादर बंदरगाह पर बड़े पैमाने पर तिजारती सरगर्मियों का आगाज हो गया है। पहला रूसी बहरी जहाज 50,000 मीट्रिक टन गंदम लेकर गवादर पहुंच गया। रूस से मुआहदे के तहत 4.5 लाख मीट्रिक टन गंदम दरामद की जा रही है। गंदम उतारने और तफसील के इंतजाम पहले ही मुकम्मल कर लिए गए हैं। रूस से गवादर तक गंदम लाने का ऑपरेशन 31 मार्च तक जारी रहेगा। चेयरमैन गवादर इंटरनेशनल टर्मिनल ने कहा है कि गंदम की दरामद से तिजारती सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से सुई नॉर्दर्न गैस के मैनेजिंग डायरेक्टर आमिर तुफैल ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अवामी मसाइल हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। स्पीकर ने कहा कि मुल्क में अवामी मसाइल को फौरी हल करना मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में परफॉर्मेंस ऑडिट फ्रेमवर्क और HEC के ज़ेर इल्तवा इक़दामात पर गौर किया गया। वफाकी वज़ीर ने जोर दिया कि हायर एजुकेशन कमीशन तहकीक, जद्दत, टेक्नोलॉजी, कॉरपोरेट गवर्नेंस, समाजी खदमात और मुलाजमत की अहलियत के हवाले से मेआरात को यकीनी बनाएं। वफाकी वज़ीर ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में कॉरपोरेट लेवल की इनोवेशन लैब्स बनाने की हिदायत की। उन्होंने HEC को एंटरप्रेन्योरशिप और एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ कोर्स को मज़ामीन के तौर पर तमाम यूनिवर्सिटीज़ में डिग्री प्रोग्राम्स का हिस्सा बनाने की भी हिदायत की। वफाकी वज़ीर तालीम और पेशा वाराना तरबियत राना तनवीर हुसैन से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने मुलाकात की। राना तनवीर हुसैन ने नवाफ बिन सईद अल मालिकी को खुशामदीद कहते हुए कहा कि मुमलिकत सऊदी अरब पाकिस्तानी अवाम के दिलों के बहुत करीब है। उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि तालीम और पेशा वाराना तरबियत पर एक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया गया है ताकि दोनों ममालिक के दरमियान मुकम्मल ताउन की निगरानी और हम आहंगी हो सके। वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक ने ग्लोबल सिस्टम्स फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन की सरबराह जुलियन गुरमैन से बार्सिलोना में मुलाकात की। इस मुलाकात में दो तरफा ताउन के फ़रोग़ और डिजिटल पॉलिसीज़ के बाहमी इश्तराक पर तबादला ख्याल किया गया। सैयद अमीनुल हक ने कहा कि मुल्क में डिजिटल नेटवर्क की तोसी के लिए पसमानदा और दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड सर्विसेज के मुतादिद मनसूबे ज़ेर तकमील हैं। एसोसिएशन के वफ़द ने टेलीकॉम सेक्टर के लिए वजारत IT के इक़दामात और पॉलिसीज़ को सराहते हुए मुस्तक़बिल में अपने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। बलोच कल्चर डे भरपूर रिवायती अंदाज में मनाया गया। बलोचिस्तान भर में तकरीबात और रैलियाँ निकाली गईं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गयूर बलोचों को बलोची सकाफत के दिन के मौके पर मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान की खूबसूरती बलोची तहजीब व तमद्दुन के रंगों और तारीख बहादुर बलोचों की कुर्बानी के बगैर नामुकम्मल है। रिपोर्ट कर रही हैं जुलेखा खान। बलोच सकाफत का दिन हमेशा की तरह इस साल भी अपनी अजीम तारीख सकाफत के रंगों और भरपूर रानाइयों के साथ बलूचिस्तान के तूल व अर्ज में मनाए। हमारी जो पगड़ी है, हमारी दस्तार है, हमारी वेस्ट कोट है, ये एक पहली शनाख्त है आपकी कि आप एक बलोच कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। और बलोच कल्चर डे को, बलोच सकाफत को हमेशा जिंदा रखे। जो कौम अपने सकाफत को जिंदा रखते हैं वो कौम हमेशा अपने ज़हनी और सकाफत के लिहाज से जिंदा रहते हैं। बलोच भाइयों से यकजहती के तौर पे मनाता हूँ और ये दिन जो है ना खास बलोचों के लिए खास दिन होता है। मकरान के साहिल से चितन की पहाड़ी चोटियों, डेरा बुगती, कोहलू, कहान, तफ्तान, पाक ईरान बॉर्डर तक बलोच सकाफत के रंग कुछ इस तरह बिखर गए जैसे मेहरगढ़ के असासों में दोबारा जिंदगी के रंग भर गए। बलोची दस्तार सर पे सजाए बहादुरी की अलामत। बलोच कबाइल की पहचान एक हाथ में तलवार
और एक हाथ में बलोची छड़ी, कंधे पर भेड़ की ऊन से तैयार करदा बलोची शाल। नौजवानों ने भरपूर अंदाज से बलोच कल्चर डे तकरीब में हिस्सा लिया। बलोच कौम मुनफरिद रवायत की अमीन है। बलोच कल्चर डे मनाने का मकसद ही ये कि लोगों को बलोची तारीख और कबाइली रिवायत से आगाह करना है। जुलेखा खान, PTV न्यूज़, क्वेटा। महकमा आसार कदीमा ने गंधारा सकाफती विरसा मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया है। इस सिलसिले में इस्लामाबाद में तकरीब हुई, जिसकी तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी। पाकिस्तान की सरजमीन अजीम सकाफती विरसे की अमीन है। दुनिया की मुख्तलिफ मशहूर तहजीबों ने यहाँ से जन्म लिया और इसके बाक़ियात आज भी महफूज हैं। इनमें से गंधारा तहजीब एक है। इस अजीम बैनुल-अक़वामी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी सतह पर रोशनास करवाने के सिलसिले में इस्लामाबाद में गंधारा कल्चरल हेरिटेज का इफ्तिताह किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर, कौमी विरसा और सकाफत इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा कि हमें कौमी विरसा के साथ साथ मुल्क में मौजूद बैनुल-अक़वामी सकाफती विरसे को भी महफूज करने की जरूरत है। इस सिलसिले में पाकिस्तान और कोरिया के दरमियान ताउन एक संग मील साबित होगा। इस मरकज के क़ियाम से पाकिस्तान की सकाफती वर्से तहफ़्फ़ुज़ और बका के लिए एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार वज़ा करने में मदद हासिल होगी। ये हमारा वलीन फ़र्ज़ है कि तमाम फ़ुरन पर कौम की सकाफती मीरास की हिफाजत, बका और फ़रोग़ को यकीनी बनाए। पाकिस्तान में कोरिया के सफीर सोसेंग पोयो ने कहा कि पाकिस्तान की सरजमीन बुद्धा तहजीब का मरकज रही है। इस तहजीब को महफूज रखने में पाकिस्तान ने आला किरदार अदा किया है। ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और कोरिया मिलकर मुल्क में मौजूद सकाफती मराकज के लिए काम करें। इससे कबल इंजीनियर अमीर मकाम ने कल्चरल सेंटर का इफ्तिताह किया और इसमें मौजूद लैब और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का दौरा किया। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने तबलीगी मरकज़ ड्राइवन में उलमाए कराम, मौलाना अहमद लाट, मौलाना फ़ारूक और दीगर अकाबरीन से मुलाकात की और दीन इस्लाम की तबलीग के लिए ग्रां कदर खिदमात को सराहा। तबलीगी मरकज़ में उलमाए कराम ने निगरान वज़ीर आला को दीन इस्लाम की तबलीग के लिए सरगर्मियों के बारे में आगाह किया। उलमाए कराम ने तबलीगी मरकज़ में मस्जिद नबवी के मॉडल पर 10 लाख नमाजियों के लिए मस्जिद तामीर करने की तजवीज़ दी, जिस पर निगरान वज़ीर आला ने ताउन की यकीन दहानी कराई। सिंध के वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, इमरान खान सोची समझी साजिश के तहत मुल्क को इंतशार की तरफ धकेल रहे हैं। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान को इम्पोर्टेड स्क्रिप्ट मिलता है, अब इसके पास नया स्क्रिप्ट आ गया है जो मुल्क के खिलाफ है। इसको मजीद रियायत देना या लाडला बनाना अच्छा नहीं होगा। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि इमरान खान ने इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई, मुल्क के आइन और सलामती को दांव पर लगाया। ये ना तो आवाम से और ना ही मुल्क से मुखलिस है। खैबर पख्तूनख्वा में अमरीकी हुकूमत की माली मुआवनत से इक्तिसादी बहाली और तरक्याती सरगर्मियों से मुतल्लिक प्रोग्राम का आगाज हो गया है। पेशावर में इफ्तिताही तकरीब के दौरान अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने प्रोग्राम के अगराज़ व मकासद से आगाह किया। रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल अहमद दानिश। अमरीकी हुकूमत की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में इक्तिसादी बहाली और तरक्याती सरगर्मियों से मुतालिक 5 साला प्रोग्राम का आगाज हो गया है। प्रोग्राम के तहत ज़राअत के शोबे को मजबूत और जदीद बनाना और छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबारी इदारों को फ़रोग़ देकर इक्तिसादी मौक़े बढ़ाना है। ये प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और निजी शोबे के इश्तिराक से नाफिजुल अमल रहेगा। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में नए इक्तिसादी प्रोग्राम से 2000 से ज़ायद कारोबारी इदारों और 56,000 काश्तकार खानदानों को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचेगा। प्रोग्राम के तहत मुतालिका सरकारी महकमों को मखसूस तकनीकी माविनत भी फराहम की जाएगी ताकि इक़्तिसादी तरक्की के इक़दामात के असरात को बढ़ाया जा सके। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात 75 साल के तवील अरसे पर मुहित है। अमरीका ने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों में पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद की है। We're here today to launch our newest program here in Khyber Pakhtunkhwa under our Economic Recovery and Development program. This activity is going to help the agricultural sector. उम्मीद की जा रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में इस नए तरक्याती प्रोग्राम से सूबे की इक्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी आएगी। सुहेल अहमद दानिश, PTV न्यूज़, पेशावर। रुख करेंगे लाहौर का, जहां 36वां बैनुल-अक़वामी किताब मेला पूरी आबोताब से जारी है। तफसील बता रही हैं वर्दा सलीम।
कहते हैं किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त है जो इस पर इल्म व आगाही के नए दरीचे खोलती है और शऊर की अथाह गहराइयों में ले जाती है। आज के जदीद सोशल मीडिया के दौर में अगरचे किताब और इंसान के दरमियान कुछ दूरी हायल हो गई है, ताहम आज भी इल्म के मुतलाशी अपनी इल्मी प्यास बुझाने के लिए किताब में गौताजन होते हैं। लाहौर के एक्सपो सेंटर में जारी 5 रोजा किताब मेले का मकसद भी इंसान और किताब के ताल्लुक को मजबूत करना है। जिंदा दिलाने लाहौर की बड़ी तादाद ने किताब मेले का रुख किया और नुमाइश की सूरत में जारी इल्म के इस बहरे बेकरार से मुस्तफीद हो रहे हैं। लोग, बच्चे, बूढ़े और औरतें किताबों की दुनिया में हैं और ये एक ऐसा मंजर है जो बड़ा ही खुशनुमा मंजर है। बुक फेयर जिंदा कौमों की एक अलामत है। किताब पढ़ना, किताब कल्चर को जिंदा रखना पूरे समाज की तरक्की है। नुमाइश में मुल्क के नामवर पब्लिशर्स और प्रिंटर्स ने भी स्टॉल्स लगा रखे हैं जहां म्यारी कुतब नहायत सस्ते दामों पर दस्तयाब है। लाहौर इंटरनेशनल बुक फेयर ये पाकिस्तान के अहम तरीन बुक फेयर्स में से एक है। कई शहरों के लोग यहाँ पर किताबों की खरीदारी के लिए आए हुए हैं। ये एक बड़ा ज़बरदस्त इवेंट है जिसमें लोग अपनी पसंदीदा किताबें एक ही छत तले खरीद लेते हैं। एक अदबी मेला, इल्मी मेला, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ना सिर्फ हमारी एक दूसरे से मुलाकातें होती हैं बल्कि हम नई नई ऐसी किताबों से भी रुशनास होते हैं जिनके बारे में हम घर बैठकर सब्र नहीं कर सकते। लाहौर का किताब मेला अब एक सालाना इवेंट बन चुका है जिसकी मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है जो यकीनन यहाँ के लोगों के किताब दोस्ती का सबूत है। इल्म के मतलाशियों के लिए ये बुक फेयर मेला किसी नेमत से कम नहीं। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि मरदमशुमारी के हवाले से कराची के शहरियों की शिकायत का इजाला किया जाएगा। कराची में डिजिटल मरदमशुमारी की तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि मरदमशुमारी से हासिल शुदा अदादोशुमार की बुनियाद पर वसाइल की मुनसिफाना तकसीम और आवाम की फलाह बहबूद की मनसूबाबंदी की जाएगी। उन्होंने कहा कि मरदमशुमारी और खाना शुमारी के अमल में कवायद का दुरुस्त इंदराज शहरियों का कौमी फरीसा है। पंजाब के गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा है कि ज़रई अजनास के बीज को बेहतर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को यकीनी बनाना होगा। लाहौर में ज़रई शोबे के हवाले से जायजा इजलास की सदारत करते हुए गवर्नर ने कहा कि बीज के मयार को बेहतर बनाकर ज़रई अजनास की पैदावार में खातिर इजाफा किया जा सकता है। गवर्नर पंजाब ने बीज के मयार को बेहतर बनाने के लिए चावल, कपास और दूसरे छोटे बीजों की 3 ज़ैली कमेटियाँ भी बनाई। कायमा कमेटी मजहबी उमूर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का इजलास सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास में कुरान पाक की इशात तरमीमी बिल 2022 पर तफसीली गौर किया गया। वजारत के हुकाम ने बताया कि इस्लामाबाद में कुरान पाक के शहीद मुक़द्दस औराक को महफूज करने के लिए रिसाइकलिंग प्लांट अगले माली साल तक मुकम्मल हो जाएगा। कायमा कमेटी ने कुरान पाक में इमला की गलतियों पर सज़ा 1 लाख रुपये जुर्माना और 6 माह कैद तजवीज़ की है। सेनेट की तवानाई की कायमा कमेटी का इजलास सैफुल्ला अबड़ो की सरबराही में इस्लामाबाद में हुआ। कमेटी ने बार डिवीजन की जानिब से गैपको में मुख्तलिफ आसामियों के लिए इंटरव्यू के मरहले पर भर्ती के अमल को मुंजमद करने और इसके बाद इन्हीं आसामियों के लिए इश्तिहार देने पर अफसोस का इजहार किया। कमेटी ने वजारत को हिदायत की कि वह आइंदा इजलास में भर्ती के अमल की मुकम्मल तफसीलात फराहम करे। कमेटी ने बलोचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाके तुरबत में बिजली के बिल्स में इजाफे के मामले पर तफसीलात तलब की। दिल धड़कने का सबब याद आया। अजीम गज़ल गो शायर नासिर काज़मी को हमसे बिछड़े 51 बरस बीत गए हैं। उनके शायरी और अदमी खिदमात के हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं अज़का मकसूद। या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू। 8 दिसंबर 1925 को भारत के शहर अंबाला में पैदा होने वाले सैयद नासिर काज़मी ने उर्दू अदब में अपने तख्लीकी सफर की इब्तिदा ज़माना तालिब इल्मी के दौरान ही कर दी थी। नासिर काज़मी अपने मुनफरिद गजल गो के तौर पर उभरे, जिन्होंने न सिर्फ गजल को एक नई जिंदगी दी बल्कि फितरत और कायनात के हुस्न से खुद भी हैरान हुए और अपने तख्लीकी जौहर से दूसरों को भी हैरान किया। पीर के बाद अगर कोई सहल मुमतने में शायर आया, इतना ताकतवर शायर आया, तो वो नासिर काज़मी है। नासिर काज़मी ने जिस तरह मूसीकियत के हवाले से मूसीकियत भरी शायरी की, उसकी मिसाल एक अलहदा है। आज भी हम उनकी शायरी पढ़ते हैं या अगर किसी ने उनकी शायरी गाई हुई है वो सुनते हैं तो वो खालिस मज़ा आता है जो इंसान के रूह को और इंसान के दिल को तक़वियत देता है। उनका पहला शेरी मजमुआ बर्ग
1954 में शाया हुआ। उनके देगर शेरी मजमूओं में दीवान, पहली बारिश, निशात ख्वाब, सुर की छाया नुमाया हैं। नासिर काज़मी शायर होने के साथ साथ एक अच्छे नसर निगार भी थे। नासिर काज़मी ने फिल्मों के लिए भी बहुत सारे गीत लिखे। उनकी तमाम शायरी एक हैरत कदा है जिसमें दाखिल होने वाला देर तक उसके सहर में खोया रहता है। उन्होंने उर्दू गजल को तख्लीकी कमाल की नई दहलीज पर ला खड़ा किया। यही वजह है कि उनकी गजलें आज भी खासो आम में मकबूल हैं। वो 2 मार्च 1972 को इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उर्दू अदब में वो अपना नाम अपनी मुनफरिद तख्लीक के बायस अमर कर गए। अस्का मकसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की कुछ अहम तरीन खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन, मौसम की खबरों में सबसे पहले रुख करेंगे गिलगित बल्तिस्तान का और आपको बताएं कि गिलगित और गिरदनवाह के इलाकों में गुज़श्ता शब से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। बारिश के बायस इस्लामाबाद से गिलगित के लिए मुसलसल तीसरे रोज़ भी परवाज़ें मुअत्तल हो गई हैं। कोहिस्तान में गुज़श्ता रोज़ से बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। नदी नालों में तोग़यानी के बायस अपर कोहिस्तान के इलाके राजिका वैली में रैला, पंचकियाँ और बिजली घर और ज़रई ज़मीनें बहा ले गया। मीरपुर और गिरदनवाह में सारा दिन आसमान पर बादल छाए रहे। हल्की हल्की बूंदाबांदी ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। मलका कौसार मरी में मूसलाधार बारिश और धुंध से सर्दी एक बार फिर लौट आई है। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। ताहम इस दौरान शिमाली बलूचिस्तान में कहीं कहीं हल्की बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है। और अब आपको मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील से आगाह करें और आपको बताएं कि लह में -7, कालाम में -3, गोपस में -1, मालम जब्बा 0, जबकि स्कर्दू में भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के चंद अहम शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील बताएं और आपको आगाह करें कि इस्लामाबाद में 11, लाहौर 15, कराची में 19, पेशावर में 15, जबकि कोयटा में 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही। मौसम के अहवाल के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के साथ।